Both the BJP and the Congress may be talking about a spirit of cooperation and consensus in Parliament, but both came out all guns blazing, targeting the other. While the Congress is targeting the BJP and the government on the NEET examination, in his response to the presidential address, BJP MP in Rajya Sabha, Sudhanshu Trivedi, he came out all guns blazing, targeting the Congress party. On the issue of comparison between Narendra Modi returning to power for the third consecutive term after 60 years, like Pandit Jawaharlal Nehru, and the Congress saying, don't compare Modi and Nehru. Well, today, Sudhanshu Trivedi said, yes, they cannot be compared. Sudhanshu Trivedi then gave 3 points. And let's start with the third point. Sudhanshu Trivedi said in Rajya Sabha that in 2013, when Rajnath Singh was the party president and the BJP parliamentary board was meeting to decide who the prime ministerial face of the party would be for the 2014 elections, Narendra Modi's name was unanimously decided and Narendra Modi had stayed out of that meeting. He then went on to talk about Pandit Jawaharlal Nehru, that in 1946, before independence, on 15th of August 1947, it was Sardar Vallabhbhai Patel who got the majority of the votes of the Congress leaders on who should be independent India's first prime minister. The next was Acharya Kriplani, and that Pandit Jawaharlal Nehru actually received 0 votes according to Sudhanshu Trivedi, and yet he went on to become the Prime Minister of India. He says that's the first comparison between somebody who's risen from the ranks and somebody who was the chosen one. Listen in. और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती। जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय, मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। और महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था, सारे कार्यकर्ता एक मत थे और पूरा देश एक मत था और तब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोषित हुए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। कि 1 वोट मिला पट्टाभी रमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है? सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। So you heard Sudhanshu Trivedi there, that Narendra Modi was unanimously elected by all BJP leaders or decided that he would be the prime ministerial face, and Pandit Jawaharlal Nehru didn't have 1 single vote in his favor. Then the second aspect, Sudhanshu Trivedi also lashed out at the opposition's undeclared emergency jibe. He went on to then recall about Pandit Jawaharlal Nehru when he was Prime Minister. He said Majrooh Sultanpuri had written words to the effect that there was something Hitler-like in the way Pandit Nehru was running the country. He was sent to jail for 2 years. Here, people are saying Modi teri kabar khudegi, or people are saying boti kaat denge, and they end up being in parliament, and yet it's Modi who's compared to Hitler. Listen in. नेहरू जी ने के विषय में प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है और उसके बाद सभापति महोदय 2 साल जेल में रहे। और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िए,
जिन्होंने बोटी बोटी की बात कही थी वो सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए और इसके बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नेहरू जी की। दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। Now the attacks didn't just stop here. There were 3 points that Sudhanshu Trivedi, BJP MP in Rajya Sabha, raised. The third one was the awards that have been given to Prime Minister Narendra Modi overseas. The top honors of various countries, including several Islamic countries. On the other hand, Pandit Jawaharlal Nehru, according to Sudhanshu Trivedi, awarded himself the Bharat Ratna. Again, he said, look how different the two are, how the two clearly cannot be compared. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। इसमें भूटान, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, रूस और मालदीव। और मेरे विरोधी विशेष रूप से सुने, इसके अतिरिक्त तमाम मुस्लिम देश, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान और विशेषकर ध्यान दें फिलिस्तीन, इतने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जो भारत के इतिहास में किसी मंत्री को नहीं मिला। और प्रधानमंत्री जी ने किसको सर्वोच्च सम्मान दिया? हमने भारत के, हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समिति ने सिर्फ हमारे नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, हमने कांग्रेस के भी नेताओं को सम्मान दिया। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को भारत रत्न मिला। मदन मोहन मालवीय जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, प्रणब मुखर्जी जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, पीवी नरसिम्हा राव जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, हमारी पार्टी के नहीं थे परंतु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, और कांग्रेस के नेता एससी जमीर और तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला। दूसरी तरफ नेहरू जी ने क्या किया? न किसी से अवार्ड मिला। अरे भाई, दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया। यानी एक मोदी जी जिन्होंने सबको भारत रत्न दिया और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत रत्न मिल गया। तो मैं मानता हूं कि इन तीनों बिंदुओं पर नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी नेहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की।